So students, in today's class we are going to learn about a method which is known as insertional inactivation, by which we can make certain sites in the plasmid inactive by adding a foreign piece of DNA. Okay, so in our previous class we have learned how to introduce and what are the particular sites where the foreign DNA can be placed or where the foreign DNA can be ligated in the plasmid. Now in today's class we are going to learn how by addition of an alien piece of DNA we can make certain sites inactive. Okay, so that we'll learn by taking a example of a bacteria. Okay, and the phenomenon that we are going to learn is the insertional inactivation. Insertional means to insert a foreign piece of DNA. Inactivation means after addition of the foreign piece of DNA to make the bacteria inactive at particular sites. Okay, so last time we have seen in the previous class, I am talking about the previous class. In the previous class, we have seen that suppose these are two plasmids, okay, and suppose if you want to introduce a foreign DNA, a alien piece of DNA or a gene of interest, and these are the two sites, okay, for insertion. In the previous class, we have read about the vector. We have read about the vector plasmid, that is PBr 322. Okay, so there we have learned that a plasmid has two sides. One is for giving resistance to a particular antibiotic, and that is ampicillin. Okay, or this particular site, if we add this vector PBr 322, has a ability to provide disease resistant to provide a antibiotic resistant at particular this site to a antibiotic, and the name of the antibiotic is ampicillin. Okay, and this particular site was to provide a resistance to a antibiotic, and the name of the antibiotic is tetracycline. दो हमने पढ़े थे, ये था आपका एम्पिसिलिन का और ये वाला था आपका टेट्रासाइक्लिन का. ठीक है ना. ओके, सो हमने क्या किया था कि हमारा अगर फॉरेन हमें डीएनए लेके आना है, तो सपोज इफ वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ फॉरेन डीएनए एट पर्टिकुलर दिस साइड, हमने इस साइड पे एक फॉरेन डीएनए लाके जोड़ दिया. नाउ दिस साइड हैज स्टिल अ resistance for ampicillin, but what about this site? Because this particular place we have used for inserting a foreign DNA, and this was the original place for providing resistance to tetracycline. Okay, so we have altered this plasmid. हमने इस plasmid को क्या करा? Alter कर दिया, change कर दिया. ठीक है, by adding this a foreign piece of DNA, हमने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट या एक फॉरेन डीएनए इस पर्टिकुलर प्लेस पे लाइगेट कर दिया डीएनए लाइगेज के हेल्प से. तो इसमें हमने क्या देखा था कि क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर प्लेस पे फॉरेन डीएनए ऐड कर दिया है, तो ये जो प्लास्मिड है, ये जो चेंज प्लास्मिड है, जो कि अब क्या बन गया है? ट्रांसफॉर्मर. ओके, ये क्या बन गया है? ट्रांसफॉर्मर. ये एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन के लिए तो रेजिस्टेंस शो करेगा, बट एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा अगर हमने इसको इस मीडियम में डाल दिया, अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन. व्हाई? बिकॉज वी हैव इनएक्टिवेटेड दिस पर्टिकुलर साइट which was originally providing resistance to the plasmid against antibiotic tetracycline. तो हमने फॉरेन डीएनए को यहाँ पे ऐड करके इस पर्टिकुलर साइट को, जो कि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी, इसको हमने चेंज किया है, ऑल्टर कर दिया है. Therefore, this becomes the transformer. ये हमारा क्या बन जाता है? ट्रांसफॉर्मर. और ये हमारा रहता है ओरिजिनल नॉन ट्रांसफॉर्मर.
ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला जब हमने उस मीडियम में एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन डाल दिया और बैक्टीरिया जो है उसको वो उसने डिजीज रेजिस्टेंस शो नहीं करी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मर हुआ ये क्यों बना? बिकॉज ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ सर्टेन साइट्स. So this particular phenomenon of making certain sites inactive by adding an alien piece of DNA at a particular site which is providing a resistance to a particular antibiotic, this is insertional inactivation. ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अभी एक और एग्जाम्पल है आपका, जैसे कि हाँ, यहाँ पे हमने ये पिछली क्लास हमने यहाँ पे एंड कर दी थी, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन आपको नहीं समझाया था, वो यहाँ पे हो गया। अब नाउ द होल प्रोसेस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इज वेरी टीडियस, वेरी it requires well sophisticated lab and instrument, okay, and it is very hard to distinguish between a non-transformer and a transformer, okay, by the normal method. So how to distinguish between a transformer and a non-transformer? Other alternative method was undertaken, okay, क्योंकि बहुत tedious टास्क है। हम पहले उसको एम्पिसिलिन में डालेंगे, फिर वहां से निकाल के हम उसको टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे, इन सब में बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए एक नॉर्मल टेक्निक बनाई गई टू आइडेंटिफाई अ ट्रांसफॉर्मर एंड अ नॉन ट्रांसफॉर्मर, ओके। ये आपको समझ में आ गया। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। अब इसमें क्या है कि जो भी मतलब मोस्ट ऑफ द, वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, व्हेन वी हैव लर्नड अबाउट many bacteria, it has been seen that most of the bacteria, they have a enzyme which is they produce enzyme, their plasmid produces an enzyme and the name of the enzyme is beta galactosidases, okay। ये जो enzyme है beta galactosidases, ये क्या है? This is a enzyme which is formed by most of the bacteria, okay। Now when this normal bacteria is means it is exposed to, yeah, it is subjected to, it is introduced to a chromogenic substance, एक नॉर्मल बैक्टीरिया को अगर हम एक्सपोज करते हैं क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के पास। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस क्या होता है? क्रोमोजेनिक सब्सटेंस एक डाई होती है, कलर्ड सब्सटेंस होती, मतलब एक ऐसा केमिकल है which provide color to the living organism or to the live organism. So when a bacteria is exposed to this chromogenic substance, then what will happen? The bacteria will become blue color, but this will happen if the bacteria is not altered, मतलब अगर उसके डीएनए के साथ हमने कोई चेंज नहीं किया है। एक हमने नॉर्मल डीएनए लिया है, तो जो नॉर्मल एक हमने बैक्टीरिया लिया है, सो नॉर्मल बैक्टीरिया विल ऑलवेज शो ब्लू कलर इफ द नॉर्मल बैक्टीरिया इज एक्सपोज्ड टू अ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस कलर्ड सबस्ट्रेट, ओके, जो कि कलर्ड सबस्ट्रेट बनाते हैं। तो हमने ये नॉर्मल एक हमारा ये तो न्यूक्लियोइड वाला रीजन हो गया और ये प्लाज्मिड वाला बैक्टीरिया का रीजन हो गया, ठीक है ना। तो हमने इसको लिया और ये क्योंकि प्रोड्यूस करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेसेस एंजाइम, जिसके वजह से सारे बैक्टीरिया क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ एक्सपोज करने पे कौन सा कलर शो करते हैं? ब्लू कलर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉर्मल बैक्टीरिया। नाउ विल मूव टू अ चेंज्ड बैक्टीरिया, ठीक है। अब हम कहाँ चलेंगे? चेंज्ड बैक्टीरिया पे चलेंगे, जो कि थोड़ा सा अलग है, ओके। कैसे हमने अलग किया? हाउ वी हैव चेंज? वी हैव चेंज बाय एडिशन ऑफ अ फॉरेन डीएनए एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। सो विल सी हाउ इट हैपेंस, राइट।
अब इसमें क्या है कि हमारा डायग्राम सेम यही रहेगा. ओके, दिस इज बैक्टीरिया. Okay, this is the normal nucleoid portion, the genetic material of bacteria, and we have changed this plasmid by addition of a foreign DNA at particular site. Okay, so this is the normal plasmid, and here we have added a foreign DNA particle, a foreign DNA piece at the same place where the plasmid was providing certain codes to form the enzyme beta galactosidase. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये प्लास्मिड है तो सपोज करो कि दिस पीस was providing codes, genetic codes for formation of the enzyme beta galactosidase. So now what we'll do, we will add a foreign DNA at this particular place. So what process will happen? Insertional inactivation will take place, and this particular place will become inactive and will not code for producing the beta galactosidases. ये beta galactosidases को फॉर्म करने के लिए कोड्स नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फिनोमिनन हो गया है, यहाँ पे जो फिनोमिनन हो गया है दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस altered recombinant bacteria will not produce beta galactosidases, and hence when this bacteria is subjected to, or it is introduced to, or it is exposed to a chromogenic substance, this will not give blue color. ये ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, एंड हेंस वी कैन डिस्टिंग्विश a transformer. This will become our transformer, and we can distinguish a transformer from a non-transformer. ठीक है, ये वाला this is your non-transformer, राइट. ठीक है, ये समझ में आया बच्चों? यस. अभी तक मैंने दो चीजें आपको बताई, इसके आगे मैं मूव तब करूंगी जब आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई है. पहली बात मैंने आपको बताई थी पिछले क्लास में, जो लास्ट टॉपिक था, हाउ टू डिस्टिंग्विश अ ट्रांसफॉर्मर एंड अ नॉन ट्रांसफॉर्मर. फिर वो आज भी थोड़ा सा बताया मैंने, एम्पिसिलिन वाला एग्जांपल लेके, टेट्रासाइक्लिन वाला लेके. Second concept that we have read is insertional inactivation, and third concept we have read today is how to distinguish between a transformer and a non-transformer by a different method. Okay, by an alternate method, because the original, the regular method was very difficult task. Therefore, we can opt for this method also. ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए तो मैं आगे चलूं बच्चों? Yes. Yes, student. Okay, should I move? मैम लास्ट पॉइंट एक बार फिर से बताना. कौन सा पॉइंट बताओ? लास्ट वाला जो भी बताया. अभी मैंने ये जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस वाला बताया. हाँ ठीक है. ओके, ये अभी ये डाउट किसका है? ये नम्रता. नहीं पता तो चले ना कि पूछता कौन है, इसलिए बोल रही है. पता चले एक ही बच्चा पूछते रहे, इसीलिए पूछ रहे भी कौन है ना. ओके, मैं बता रही हूँ. देखो, एक नॉर्मल बैक्टीरिया जो हम एनवायरनमेंट में जो भी बैक्टीरिया लेते हैं, अगर वो एक नॉर्मल, देखो बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया, तो नॉर्मल बैक्टीरिया भी हो गए, म्यूटेंट वैरायटी भी हो गई, और तीसरा वो बैक्टीरिया वेयर वी हैव चेंज द प्लाज्मिड एंड वी आर यूजिंग फॉर द लेबोरेटरी पर्पस. ये तीन तरह के हमारे पास बैक्टीरिया हो गए, ठीक है ना. तो जो नॉर्मल बैक्टीरिया है, इन नॉर्मल केसेस इट इज सीन दैट अ नॉर्मल बैक्टीरिया produces a enzyme and the name of the enzyme is beta galactosidases. ठीक है ना. वो नॉर्मल एक बैक्टीरिया, हर बैक्टीरिया ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस. जैसे हमारी बॉडी बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है,
उसी तरह से ये जो बैक्टीरिया है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेसेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, सारे बैक्टीरिया नॉर्मल। अब ये कोई भी बैक्टीरिया है या कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर किसी एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है, इट मींस कि हमने जेनेटिक कोड्स वाले में पढ़ा था ना, इट मींस दैट इज a certain codes are present in the DNA because of which this enzyme is formed। ठीक है, हमारी बॉडी में किसी भी चीज की फॉर्मेशन होती है तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, जेनेटिक कोड्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो इट मींस कि दैट फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेसेस व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, certain genetic codes are present। Now if we take out the plasmid of a bacteria and we know the site where the code for the beta galactosidases are there, तो हमें साइट पता चल गई, ये थी हमारी साइट जो कि प्रोड्यूस करती थी, जो जिसके पास जेनेटिक कोड था प्रोड्यूस करने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेसेस, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, ये नॉर्मल केसेस में जो बैक्टीरिया होता है जिसके हमने प्लाज्मिड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, that normal this bacteria when it is added to a chromogenic substance जैसे हमने मिथाइलिन ब्लू पढ़ा या सैफरन, ये सब स्टेन यूज करते हैं ना हम लैब में, इसी तरह से लेबोरेटरीज में जहां पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वहां पे सर्टेन क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस आर देयर व्हिच आर सर्टेन डाइज, okay, and they are used in this DNA recombinant technology to distinguish a transformer and a non-transformer in case of bacteria। तो नॉर्मल बैक्टीरिया हमेशा एक क्योंकि वो बीटा गैलेक्टोसाइडेसेस प्रोड्यूस करता है, तो नॉर्मल बैक्टीरिया को अगर हम क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ एक्सपोज करेंगे तो वो हमेशा कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर देगा। ये तो हुआ हमारा नॉर्मल। अब हमें पता चल गई थी कि कौन सी साइट है विच इज प्रोड्यूसिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेसेस, at that place we have introduced our gene of interest, okay। तो हमने इसको डीएनए को ऑल्टर, इस प्लाज्मिड को हमने ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है ना। So when we have added a foreign piece of DNA here, then this particular site will become inactive, ये inactive बनेगी, बाकी सारी sites इसकी active हैं, these all sites are active, only this site will become inactive, and since it is inactive, therefore it will not produce any genetic code for formation of beta galactosidases, okay। And since beta galactosidases is not formed, therefore when the altered bacteria is added to or exposed to a chromogenic substance, it will not produce blue color, ये blue color produce नहीं करेगा, ठीक है। So ये मेथड को क्यों ऑप्ट किया गया, इस मेथड को इसलिए ऑप्ट किया गया क्योंकि जो हमारा पिछला मेथड था ना, क्रोमोजेनिक नॉन ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसफॉर्मर में डिस्टिंग्विश करने वाला, पहले हमने एम्पिसिलिन में डाला, फिर हमने टेट्रासाइक्लिन में दिखा, फिर हमने दोनों के कलर देखे, वो थोड़ा टीडियस टास्क है, इट नीड्स टाइम, ओके। सो यहाँ पे हमारा एक ऑल्टरनेट मेथड है जो इजी मेथड है, ओके। हमें क्रोमोजेनिक सब्सटेंस चाहिए, उसमें हमने ट्रांसफॉर्मर में डाल दिया, नॉन ट्रांसफॉर्मर में डाल दिया। नाउ इफ वी हैव अ पेट्री डिश, एक हमारे पास वॉच क्लास से पेट्री डिश है जिसमें हमारे पास कॉलोनी है, उसमें हमारे दोनों चीजें मिली हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया भी, ऑल्टर्ड बैक्टीरिया भी है। सो द ब्लू कलर विल बी जो ब्लू कलर है वो कौन से होंगे, अब बताओ अपने आप, द ब्लू कलर ऑफ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया विल बी ए ट्रांसफॉर्मर और अ नॉन ट्रांसफॉर्मर, बताओ। यस बच्चों, नॉन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। जो ब्लू कलर के बैक्टीरिया हमें वो वॉच क्लास में दिखेंगे वो सारे नॉन ट्रांसफॉर्मर होंगे, और जो व्हाइट दिखेंगे या कलरलेस दिखेंगे या ब्लू कलर से थोड़ा डिफरेंट होंगे वो क्या होंगे, हमारे ट्रांसफॉर्मर होंगे। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि दैट आवर डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इज सक्सेसफुल एंड वी आर एबल टू प्रोड्यूस सर्टेन दिस ऑल्टर्ड रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। तो इससे हम श्योर हो जाएंगे कि हमने जो किया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये सक्सेसफुल है भी कि नहीं है। हम करते जा रहे हैं और उसका हम रिजल्ट नहीं देख रहे तो फिर हमारा सारा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा ना इस टेक्निक को यूज करने के लिए। तो एट एवरी स्टेप वी हैव टू गेट इंश्योर, वी हैव टू गेट इंश्योरिटी whether up to this step we have done right or not, ठीक है ना। जैसे आपके बीच बीच में मिड टर्म का एग्जाम हो गया, ये वाला एग्जाम हो गया, तो उससे क्या
2 महीने की आपके परफॉर्मेंस पता चलती है उसी तरह से, ठीक है ना, ये भी एक टेस्ट है, ठीक है। नाउ विल मूव, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ओके। अब कितना टाइम हुआ, क्योंकि मुझे ये वाला आज खत्म करना, 8:24 अभी है हमारे पास बहुत सारा टाइम, ओके। So this is how to make a natural genetic engineer. Okay. So since we have in this lesson whole we are revolving around the central topic, and that is recombinant DNA technology. And you all know that genetic engineering is also a field which comes under biotechnology, in which we use the gene for changing the DNA or genetic makeup of any organism. Okay, so it is also possible to use the organisms which are present in the environment and to make it, to use them as natural genetic engineers. ठीक है ना, कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिनसे हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्स बना सकते हैं। ओके, तो इसमें आपका जो पहला है, 2 एग्जांपल बुक में है आपके, एक है आपका एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens. Okay, Agrobacterium tumefaciens, which is a variety of bacteria. Okay, ये जो Agrobacterium tumefaciens हैं, in normal condition it is actually a pathogenic bacteria which causes infection in a dicot plant at their root. ठीक है, and what it does in the root, it forms a tumor like outgrowth. ठीक है, ये जो एग्रोबैक्टीरियम है ट्यूमिफेशियंस, ये एक बैक्टीरिया है, एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, और ये क्या करता है, ये डाइकॉट प्लांट्स के रूट पे ट्यूमर फॉर्म करता है। ट्यूमर हमने पढ़े हैं ना, कैंसर सेल्स, ठीक है। तो ट्यूमर सेल्स क्या है, ऐसे सेल्स विच हैव लॉस्ट द विच हैव in which the velocity or the speed of cell division is very high as compared to the normal cell. वो normal cell से बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, divide करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये रूट में उसको इन्फेक्ट करके वहाँ पे ट्यूमर को कॉज करता है। अब साइंटिस्ट ने क्या करा कि चलो इसी को लेते हैं, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस तो हो जा रहा है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी प्लांट में इंट्रोड्यूस तो अपने आप ही हो जा रहा, तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो उन्होंने क्या करा कि इसका जो प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का, सपोज कि हम ये ले लेते हैं प्लाज्मिड, ठीक है ना। अब यही वाली बात होगी जो मैंने आपको यहाँ पे बता रही थी, ये पर्टिकुलर साइट है जहां पे कोट्स प्रोड्यूस होते थे, क्या फॉर्म करने के लिए, ट्यूमर। Okay, so what scientists did, they have changed the normal plasmid of this bacteria to a TI plasmid. ठीक है, उन्होंने जो इस नॉर्मल जो प्लास्मिड है, ये इसका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का, इसका एक जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लास्मिड बना दिया। हाउ? By introducing any foreign piece of DNA or gene at this location, which was providing tumor, which was the reason for generating genetic codes for releasing a chemical by which tumors are formed. ये पर्टिकुलर साइट जो थी वो क्या करती थी कि वो कुछ ऐसे कोड बनाती थी जिसके वजह से प्लांट में जैसे ही ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करता था, उसके अंदर से, बैक्टीरिया के अंदर से, इसके प्लाज्मिड के अंदर से एक केमिकल निकलता है, और जिससे वो बैक्टीरिया के जो रूट्स होते हैं वहां पे ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाती थी। ओके, सो वहां से जो ट्यूमर फॉर्मिंग जीन था, रेस्पॉन्सिबल जीन, उसको निकाल लिया गया। वहां पे एक रेजिस्टेंस जीन, डिजीज रेजिस्टेंस जीन इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका क्या बन गया, ये आपका TI प्लास्मिड बन गया, ठीक है ना। ओके, सो दिस TI प्लास्मिड, नाउ व्हेन दिस TI प्लास्मिड was introduced to a normal plant, okay,
अब क्या करेंगे, अब जो ये हमने एक टीआई प्लाज्मिड तो जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लाज्मिड है, ये हमने लैब्स में बना दिया, इसको हमने बैक्टीरिया के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। तो जो हमारा बैक्टीरिया बन गया है वो क्या है, वो है हमारा नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ठीक है, कैसे? अब ये हमारा जो चेंज्ड बैक्टीरिया है, ये आपको पता है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का तो काम ही है इन्फेक्शन कॉज करना, तो वो इसका मतलब कि प्लांट उसको बहुत जल्दी ले लेता है, वो जल्दी ही प्लांट में चला जाता है, ये उसका नेचर है। ओके, तो उसी तरह से ये अपनी बाय नेचर ये क्या करेगा, प्लांट्स को अंदर तो चला जाएगा उनकी बॉडी में, बट वहां पे बिकॉज वी हैव इनएक्टिवेटेड द ट्यूमर फॉर्मिंग जीन एंड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ डिजीज रेजिस्टेंस जीन, यहाँ पे हमने डिजीज रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये अंदर जाएगा उस प्लांट में, बट ट्यूमर फॉर्म नहीं करेगा और सारे प्लांट्स को क्या प्रोवाइड कर देगा, रेजिस्टेंस। तो हमने उसी बैक्टीरिया को यूज करा जो कि ट्यूमर कॉज करता था, तो हमें कुछ अलग से भी नहीं लाना पड़ा। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द नेचुरल bacteria which was originally causing tumor in that dicot plant, and we have altered its plasmid, we have changed it to a TI plasmid, and we have introduced in the plant, in the dicot plant, and hence all the plants were free from tumor। ठीक है, तो ये तो एक हुआ आपका नेचुरल क्या, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। दूसरा है एक कैंसर कॉजिंग वायरस। ठीक है, ऐसा वायरस जो कि क्या करता है, कैंसर कॉज करता है। ठीक है ना, तो अ वायरस वाज आइडेंटिफाइड व्हिच वाज कॉजिंग कैंसर। ठीक है, तो अब इसको क्या करा, एक सेकेंड बच्चों, ओके, सो बस इसमें भी सेम वही है, जो कैंसर कॉजिंग वायरस है उसके भी उस पर्टिकुलर जीन को आइडेंटिफाई करा जो कैंसर कॉज करता है, वहां से उसको हटा के डिजीज रेजिस्टेंट जीन डाल दिया गया, और अब वो वायरस जिसको भी इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करना मतलब बस वो इंट्रोड्यूस होगा जिसकी भी बॉडी में, वहां पे वो डिजीज भी कॉज नहीं करेगा, कैंसर भी नहीं कॉज करेगा, और वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे बल्कि वो उसको डिजीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और एक और चीज आपको बताई थी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्यूमर एंड कैंसर, ये एनीवन, ये हमने उस लेसन में पढ़ा था ना, डिफरेंस क्या है ट्यूमर और कैंसर में? यस बच्चों, एनीबॉडी? Ma'am, tumor can be removed and cancer cannot. ओके, ट्यूमर, Cancer cells divide more. देखो यस इशिता, बिनाइन ट्यूमर, सी ट्यूमर कैन बी ऑफ बोथ द टाइप, इट कैन बी इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। ट्यूमर इज ओनली द सेल डिवाइडेड, द सेल्स विच हैव डिवाइडेड अ लंप ऑफ सेल। ठीक है, ट्यूमर क्या होता है, एक सेल का ग्रुप होता है जहां पे सेल डिवीजन हुई होती है, लेकिन वो सेल का जो ग्रुप है, हाँ इशिता वेरी नाइस, मेलिग्नेंट ट्यूमर। सो अगर वही ट्यूमर का जो ग्रुप है अगर वो इन्फेक्शियस है तो वो कैंसरस है, मतलब कि वो पूरे बॉडी में सब जगह ट्रेवल हो रहा है, ट्रेवल भी हो रहा है या वहीं से इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो वो हो गया आपका कैंसरस। और जो वहीं पे रहेगा और कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहा, वो जस्ट एक ट्यूमर है। ठीक है ना, तो पहला बार ये दोनों आप इसमें इन एग्जाम्पल्स में डोंट कंफ्यूज। ओके, द फर्स्ट वन वाज प्रोवाइडिंग ओनली ट्यूमर, वो क्या अलग अलग जगह ट्यूमर कॉज कर देता था, तो प्लांट की ग्रोथ उससे रुक जाती थी, कैंसर नहीं हो रहा था उसमें केवल ट्यूमर फॉर्म हो रहा था, तो प्लांट के रूट में ऐसे ग्रोथ हो जाती है, तो ग्रोथ हो रही है, देयरफॉर द प्लांट वाज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट एंड द रूट वाज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, प्रॉपर वे में जैसे वो फंक्शन करती है रूट वैसे नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि रूट वाले एरिया पे क्या बन गया है, ट्यूमर। ठीक है, दूसरा हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा वो वायरस का पढ़ा है, जो कि क्या कॉज कर रहा है, कैंसर। ये उससे डिफरेंट है, ये वायरस जो है ये एक ऐसा वायरस है विच इज कॉजिंग कैंसर इन सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो वी हैव टेकन आउट the gene which was responsible for cancer forming, and we have introduced a disease resistant gene. So the altered plasmid of this virus will not cause cancer, and in addition to this it will also provide a disease resistance. तो हमें कोई
वैक्सीन भी नहीं डालनी पड़ी ऑर्गेनिज्म में, हमें कुछ इंजेक्ट भी नहीं करना पड़ा, और हमारा नेचुरल वे में ही कैंसर या ट्यूमर खत्म हो गया। ठीक है ना। तो ये दोनों को ही हम, ये टीआई प्लाज्मिड वाले बैक्टीरिया को और जो ऑल्टर्ड वायरस है जिसमें जो कैंसर फॉर्म नहीं करता है और डिजीज रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, बोथ ऑफ देम आर आवर नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्स जो कि लैब में बनाए गए हैं। ठीक है ना। ओके, ये तो हुआ, हमने सारा पढ़ लिया क्लोनिंग वेक्टर्स के लिए, जो थोड़ा सा एक टिपिकल टॉपिक भी था। और अगर आपने शुरू से लेक्चर पढ़े होंगे, मिस नहीं किए होंगे, तो समझ में आ गया होगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, नहीं यहाँ से समझा या कहीं और से, तो आई डोंट नो कि आपको समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, हो भी सकता है। या मैनी वीडियोज ऑल्सो, देयर मेनी मटीरियल्स ऑन द नेट और इन योर सराउंडिंग्स, तो समझ भी हो सकता है। बट डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि अगर आपने क्लास अटेंड करी होगी 2-3 क्लासेस, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक था ये। ठीक है ना। हमारा ये वेक्टर जो है वो हो गया है। हमने वेक्टर हमारा मतलब वेक्टर के बारे में हमको सब कुछ पता चल गया है। नाउ वी हैव altered the plasmid to make a vector, but is the bacteria competent to take the plasmid? ठीक है ना। हमें एक फॉरेन या ऑल्टर्ड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया की बॉडी में डालना है, पर क्या बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट है कि वो ले लेगा उसको? मतलब ये तो वही वाली बात है कि हम तो पूरी तैयारी करके आ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो लेक्चर्स दे रहे हैं, तो क्या बच्चे उस लेक्चर्स को सुनने के लिए तैयार है? ठीक है ना। तो इस तरह से उनको कैसे प्रिपेयर करना है कि वो लेक्चर सुने। ओके, दैट इज हाउ we have to make you competent so that you can see the class or learn something. Similarly, here also, how to make bacteria competent so that it can take the foreign plasmid. हमने वेक्टर बना लिया, लेकिन हमने उसकी बैक्टीरिया की बॉडी में जब उसको इंजेक्ट किया, बैक्टीरिया तो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको ले ही नहीं रहा है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है दैट वी शुड हैव टेक्निक्स टू मेक द बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट। ओके, कॉम्पिटेंट मतलब समझ में आया? कॉम्पिटेंट मतलब कि द बैक्टीरिया इज एबल टू टेक द फॉरेन पीस ऑफ द ऑल्टर्ड प्लाज्मिड। एक और यहाँ पे बात है कि डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। ओके, इसके साथ साथ डीएनए, इफ यू स्टडी द नेचर ऑफ डीएनए इज हाइड्रोफिलिक। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोफिलिक? डीएनए क्या है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब, यस बच्चों, हाइड्रोफिलिक मतलब व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोफिलिक? अंजलि, Water lover. water loving and oil, Phobic. oil, क्या बोला? Phobic. नहीं समझ में आ रहा। Which dissolve in water. ठीक है, मीन्स staying away from oil। ठीक है ना। ओके, तो जो इट हैज बीन सीन दैट सिंस द नेचर ऑफ डीएनए इज हाइड्रोफिलिक, जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक नहीं है। और अगर आपने पढ़ा होगा, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। लिपिड्स मतलब एक तरह का फैट्स एंड ऑयल। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? डीएनए विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन द बैक्टीरियल बॉडी। जो बैक्टीरिया की बॉडी है वो वहां पे एब्जॉर्ब डीएनए नहीं होगा। सो आवर वर्क इज टू मेक द मेम्ब्रेन in such a way, or to change the membrane in such a way that it can easily absorb DNA. ठीक है। So therefore the bacteria in which we want to introduce our vector, there the bacteria is subjected to, or it is treated with, or it is kept in a medium which has divalent anions, जहां पे ऐसे अनायंस है जिनकी वैलेंसी 2 है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन एक डाइवेलेंट आयन है, और ये जो है ये क्या करता है? ये मेम्ब्रेन की, बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। Therefore, when the permeability increases, the pores
allow the bacterial pores allow the DNA to be absorbed inside and to be introduced in the plasmid, और वो प्लास्मिड में easily आ जाता है. क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया की वॉल है, जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, वो डाइवेलेंट कैटायन, डाइवेलेंट आयंस के ट्रीटमेंट के साथ क्या हो जाती है, उनकी जो पोरोसिटी है वो बढ़ जाती है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बढ़ जाती है. नाउ दे कैन इजीली एब्जॉर्ब डीएनए. ओके, और ओरिजिनली क्यों नहीं एब्जॉर्ब हो रहा था? क्योंकि डीएनए हाइड्रोफिलिक है, वो ऑयल से दूर रहता है, तो इसीलिए वो मेम्ब्रेन्स के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है इजीली. ठीक है, ओके. और उसके बाद हम इसको जब चेंज, मतलब एनायन से, डाइवेलेंट एनायन से हमने इसको ट्रीट कर दिया, देन द बैक्टीरिया इज केप्ट ऑन आइस फॉर सम टाइम एंड इट इज गिवन अ हीट शॉक. उसको हीट शॉक दिया जाता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है ना. तो पहले हमने डाइवेलेंट एनायन से जो बैक्टीरिया है उसको ट्रीट करा. उसके बाद जब डीएनए उसमें एब्जॉर्ब हो गया तो उसके बाद हमने उसको आइस पे रखा. देन वी स्टार्ट गिविंग हीट शॉक between temperature from 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है ना. एंड उसके बाद क्या हुआ कि हम इसको आइस पे इंक्यूबेट करेंगे. तो ये आप एज इट इज कॉपी में लिख लोगे. ठीक है ना. आइस हमने उसको डाइवेलेंट आयन से वो किया, ट्रीट किया, आइस पे डाला, हीट शॉक दिया, और उसके बाद जब ये हीट शॉक दे दिया तो उसके बाद हम उसको आइस पे इंक्यूबेट करेंगे. इंक्यूबेशन मीन्स प्रोवाइडिंग सर्टेन टेम्परेचर फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि ये जो हेन होते हैं ना, या इनसे जब चिक्स निकाले जाते हैं, मशीन से निकाले जाते हैं या नेचुरली जब एग से चिक्स बाहर आते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो हेन है, ठीक है ना, दे सिट ऑन द दिस egg for a longer period of time. Okay, so that is incubation. तो उससे क्या होता है, उसकी बॉडी की जो हीट है वो उसके ऊपर जारी होती है. पर वहां पे हीट था, और यहाँ पे हम इंक्यूबेशन किससे कर रहे हैं? आइस से कर रहे हैं. तो आइस का टेम्परेचर जब हम दे रहे हैं तो वो ठंड के वजह से, लेस टेम्परेचर के वजह से जो डीएनए है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा और कहाँ पे चला जाएगा? जाके प्लास्मिड से जुड़ जाएगा. ठीक है. Now this is how to make a bacteria competent. Okay. Next is how to introduce the foreign DNA. What are the methods by which we can introduce the foreign plasmid in an animal cell and a plant cell. ठीक है. एक animal cell में और एक plant cell में हम इनको कैसे introduce करेंगे. ठीक है. तो animal cell के लिए माइक्रो इंजेक्शंस आर अवेलेबल इन द लैब. बहुत ही थिन माइक्रो इंजेक्शंस होते हैं जिनको हम एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से लोकेशन देखेंगे और हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉरेन पीस ऑफ डीएनए है वो डायरेक्टली हम एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डालते हैं. सपोज दिस इज एनिमल सेल, then we introduce the foreign DNA directly inside the nucleus. ठीक है. इफ इट इज एनिमल सेल बाय यूजिंग माइक्रो इंजेक्शन. क्या यूज करेंगे हम? माइक्रो इंजेक्शन. ठीक है. उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है माइक्रो इंजेक्शन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप पे लोकेशन देखेंगे माइक्रोस्कोप से, माइक्रो इंजेक्शन से हम फॉरेन जो डीएनए है या प्लास्मिड उसको हम कहाँ पे डाल देंगे? उसको हम प्लास्मिड या तो जो भी फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट व्हाटएवर we will add where directly inside the nucleus if it is the animal cell. ठीक है ना. but if it is a plant cell, अगर वो प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में क्या करते हैं? दूसरी टेक्निक है एंड द नेम ऑफ द टेक्निक इज बायोलिस्टिक. जो टेक्निक का नाम है दैट इज, आई थिंक द बोर्ड इज विजिबल. मैंने बोर्ड थोड़ा सा टिल्ट करते, बोर्ड दिख रहा है ना बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है. ओके. Yes, ma'am. ठीक है. सो ये जो बायोलिस्टिक, द टेक्निक विच इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द फॉरेन डीएनए inside a plant cell is known as biolistic, and the alternate name for this is gene gun. ठीक है ना. सो आप गूगल पे जीन गन करके डालना तो आपको उसका इमेजेस में डालना तो आपको जीन गन की फोटोग्राफ भी मिल जाएगी.
ठीक है ना। तो जीन गन के हेल्प से, इस प्रोसेस को कहते हैं बायोलिस्टिक। जीन गन के हेल्प से क्या करते हैं कि जो फॉरेन डीएनए है वो इंट्रोड्यूस करते हैं प्लांट सेल में। ओके, और इसके लिए एक और इसमें जो तरीका है वो ये है कि जो आपका फॉरेन पीस ऑफ डीएनए है, इट इज कोटेड विद, यहाँ पे आप लिखो गोल्ड और टंगस्टन। ये फॉरेन जो डीएनए है, ये बीच वाला, इसको हमने कोट किया है यहाँ पे गोल्ड या टंगस्टन से, ठीक है। इसको हम हाई एनर्जी पे बॉम्बार्ड करेंगे, किसके साथ? इसको हम बॉम्बार्ड करेंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के साथ जिसमें हमें उसको डालना है, जो प्लांट सेल में हमें इसको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो इस तरह से हाई वेलोसिटी ऑफ बॉम्बार्डमेंट के साथ जो हमारा फॉरेन डीएनए विच इज कोटेड विद गोल्ड और टंगस्टन, दैट गेट्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्लांट सेल। तो इस तरह से प्लांट सेल में फॉरेन डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से, जैसे आपकी बुक की लैंग्वेज देखो, यहाँ पे एक वर्ड मेरे से छूट गया, यहाँ पे एक लिखा है वर्ड डिसआर्म्ड, DISARMED, डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड पैथोजन मीन्स द डिसेबल्ड पैथोजन, ठीक है। डिसेबल्ड पैथोजन, जैसे हमने यहाँ पे मैंने बताया ना, दोनों एग्जाम्पल। डिसआर्म्ड, ये वर्ड याद रखना, ये मुझे ध्यान से निकल गया था, इसीलिए मैं इस चीजें यहाँ लिख देती हूँ कि एक सेकेंड, डिसआर्म्ड। Disarmed means making a pathogen inactivated, एक किसी भी पैथोजन को इनएक्टिव बनाना को जो प्रोसेस कहते हैं डिसआर्म्ड पैथोजन। ओके, जैसे यहाँ पे हमारे दोनों एग्जांपल थे, यहाँ पे जो हमारा बैक्टीरिया उसको डिसआर्म्ड कर दिया है बाय चेंजिंग इट्स प्लाज्मिड टू अ TI प्लाज्मिड। ओके, एंड हियर वी हैव डिसआर्म्ड वायरस बाय चेंजिंग इट्स जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे प्लाज्मिड नहीं आएगा। चेंजिंग इट्स, वायरस का क्या होता है? वायरस का प्लाज्मिड नहीं होता, वायरस का तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होता है, ठीक है ना। तो उसके डीएनए या आरएनए को हमने चेंज किया ताकि वो कैंसर फॉर्म नहीं करे। सो वी हैव डिसआर्म्ड द वायरस, ठीक है ना। तो ये वर्ड मेरा इसमें से छूट गया था, ये मैं बायोलिस्टिक के बारे में पढ़ रही थी। Yes, in another method suitable for plant, cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA. In a method known as biolistic or gene gun, ठीक है ना। So by this method the foreign DNA can be introduced in the plant cell. Okay, so this is all for today. If you have any doubt you can ask. बच्चों अगर कुछ आपको डाउट है आप पूछ सकते हो, because it's a time for taking your attendance. ये बच्चों ये देखो बेटा, इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, और ये क्या सारी चीजें यहीं पे लिखी होती है ना, तो अगर कुछ भी कहीं पे भी डाउट है, ये मैं थोड़ा सा फास्ट और ले सकती थी अगर मैं चाहती तो दिसंबर आपका ये आने से पहले पूरा वो भी खत्म कर देती, पर मैं जानबूझ के थोड़ा सा धीरे हूँ, क्योंकि क्या फायदा आपको जल्दी पढ़ा के आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ भी है तो कोई भी बच्चा यहाँ पे डाउट पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि एक दो ही पूछेंगे, इसलिए मैंने नाम पूछा था, ठीक है ना। तो एनीबडी, और ये नहीं कि जो पूछ रहे हैं वो नहीं पूछेंगे, कोई भी बच्चा आराम से पूछो यहाँ पे, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन हियर, तो वो दोबारा से मुझे लिखना और समझाना नहीं पड़ेगा, यहीं पे मैं इजीली बता पाऊंगी, टाइम भी बचता है आपका भी और मेरा भी, ठीक है। ओके, ये इस पूरे क्लास से ही मेरी वो है कि हैव यू सिलेक्टेड योर टॉपिक्स? हैव यू सिलेक्टेड योर Yes, टॉपिक? ma'am. ओके, तो आप एक काम करोगे, ओके एक आप ये काम करोगे कि बिफोर दिस वेकेशन यू राइट योर टॉपिक, नेम ऑफ द टॉपिक दैट यू हैव सिलेक्टेड एंड गिव इट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। कि आपका टॉपिक ठीक है कि नहीं है वो मैं आपको बता दूंगी, देन ओनली यू विल वर्क ऑन इट, ठीक है। तो आप प्लीज, अगर आपने टॉपिक अपना सेलेक्ट कर दिया, एक दो बच्चों ने दिया भी था, मैंने उनको फॉरवर्ड भी कर दिया कि ठीक है कि नहीं है, बाकी जो बच्चे बचे हैं प्लीज फॉरवर्ड योर टॉपिक ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, राइट। Yes, Aditi. Present, ma'am.